और इस वक्त भारत के खाते में बड़ी उपलब्धि जुड़ रही है। पीएसएलवी के जरिए जो 3 भारतीय सैटेलाइट थे वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुके हैं और अब जो विदेशी सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो रहे हैं और ये बड़ी उपलब्धि भारत के खाते में इसरो ने रच दिया है इतिहास। आपको बता दें कि कार्टोसैट सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका है, जो पृथ्वी पर नजर रखेगा, जो भी भारत के अंदर गतिविधियां चलेंगी उसकी बारीकी से जानकारी वो पहुंचाएगा और उसके अंदर जो कैमराज लगाए गए हैं वो हाई रेजोल्यूशन कैमराज है, जिससे सही तस्वीर भारत की अब सबके सामने आ पाएगी। ये जो सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी की कक्षा में इस वक्त स्थापित हो रहे हैं। Conclusion of this mission, in the sense that the 12 satellites now, which will be separated little later, and they will be the separations will be confirmed from the ground station at Troll, Antarctica, where after 400 seconds the Troll station will acquire our PS4, and then the recorded separation information will be received by us. You can see our chairman and senior scientists congratulating each other. Now our chairman is going to speak shortly to all of you, and we say goodbye to you from here. Thank you for being with us, and let us hear our chairman speaking to us now. इस प्रसारण के दौरान Good morning to all of you. Today PSLV C-34 has done its job, and we have the current generation of Earth observation satellite Cartosat 2 series, and along with this another 17 satellites have been put into the orbit, and we will get the confirmation for the Dove series of satellites shortly. Now I'd request Kunni Krishnan, Director SDSC, to say a few words. PSLV would be at the pinnacle of joy and pride, because immediately after the successful completion of a major task assigned to it of launching 7 navigation satellites to form the constellation NAVIC, today it has accomplished yet another major milestone with 20 satellites, 17 satellites from other countries, 2 from the Indian Academia, and 1, the major satellite, Cartosat 2 series. I would like to express my sincere gratitude to the entire ISRO team. By marking 35 consecutive successful missions, today, forging closer and closer to the ultimate reliability figure, today, PSLV has now become a success symbol for ISRO and for the country. By making successive missions in a short span of time, in that process, we have been adopting more and more professionalism in our launch campaign activities. This time, the first stage of the vehicle was independently prepared in the newly reconfigured assembly bay, SSAB, and then moved to the vehicle assembly bay for further integration. And this practice will be followed for the coming missions as well, towards seamless and parallel integration in terms of the number of launches from the second launch pad. At this juncture, I would like to acknowledge the resounding efforts and contributions by all the members of our ISRO family spread across the country, and of course the Indian industries. They have very much stood by us. I am so glad that we were able to provide world-class launch service to our esteemed customers from other countries. As has always been the case, ISRO never gets carried away by the huge successes. Already we have geared up for the upcoming missions defined by Chairman ISRO. The coming days are going to be hectic and at the same time very exciting because of the variety of missions ahead. GSLV F-05 with INSAT 3DR, followed by the first developmental flight of GSLV Mark III from the second launch pad. In parallel with, we are going to have a multiple of PSLV launches from the second launch pad, and Director VSSC has already proposed for the air-breathing launch from SHAR that will be done from the sounding rocket complex of
Shah. I am sure we all will portray the same enthusiasm and vigor for our upcoming missions also to stage more and more heights and ISRO's status to stage more and more heights. इसरो के मिशन डायरेक्टर उन्नी कृष्णन को आप सुन रहे थे, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सफर रहा, और साथ ही वहां के जो चीफ है, इसरो के चीफ AR कृष्णन, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी कि आखिर ये जो प्रक्षेपण है ये सफल रहा है और इस समय सारे जो सैटेलाइट हैं वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गए हैं। और आपको साथ ही एक ये भी जानकारी दे दें कि पुणे के छात्रों ने स्वयं सैटेलाइट बनाया है, वो सैटेलाइट भी आज भेजा गया है। पुणे से हमारे साथ भक्ति वहां से जुड़ गई है। ओवर टू यू भक्ति। पुणे के COEP के छात्रों ने बनाया हुआ स्वयं सैटेलाइट जो है वो आज श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हो चुका है, और इस बात की खुशी इन सभी छात्रों के चेहरों पर ही दिखाई दे रही है। उन्हीं से बात करते हैं। क्या खुशी है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली इतने इयर्स के बाद हमारा स्वयं लॉन्च हो रहा है, तो वी ऑल आर हैप्पी। स्वयं को बनाने की प्रक्रिया हमने सुना है कि लगभग 8 साल चली। क्या ये प्रक्रिया थी और कितने छात्र थे जिन्होंने इसमें सहभाग लिया है? टोटल हमारे 2008 के बैच से 176 स्टूडेंट्स थे, और स्टार्टिंग में हमारा रिसर्च फेज था, फिर देन वी स्टार्टेड टू डिजाइन एंड देन वी कंप्लीटेड दिस सेट एंड वी डिड ऑल द एनवायरमेंटल टेस्ट इन आईसैक। एरोस्पेस जो है ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, और ये बात होते हुए भी आपने स्वयं सक्सेसफुली बनाया, इसका क्या राज है? इसका हम सब में एक पैशन है कि हमें कुछ बनाना है, सैटेलाइट बनाना है, बस वही पैशन हमें ड्राइव करता था। इन सभी छात्रों के गाइड मेश्राम सर भी है हमारे साथ। सर, आपके छात्रों ने ये जो सक्सेस आज पाया है उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट है कॉलेज के लिए और बच्चों के लिए, तो वी आर रियली एक्साइटेड। बच्चों ने जो उनका ज़ील, उनका पैशन, उनका एक्साइटमेंट वो प्रूव करके दिखाया, और दे हैव प्रूव्ड दैट दे आर नन अदर देन IITs एंड NITs। दैट इज़ वन मैसेज। सेकंड, हमारे COEP का जो टैगलाइन है, ट्रूथ, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ये बच्चों ने 8 साल एंड्योर करके, उनका स्ट्रेंथ करके दे हैव प्रूव्ड, और वो सैटेलाइट आज लॉन्च हुआ। इसीलिए हम सब इतने खुश हैं कि आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। द होल क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट्स ओनली। 8 साल की मेहनत के बाद स्वयं इसरो की तरफ से प्रक्षेपित होना आप सबके लिए क्या मायने रखता है? इसरो को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब इसरो के साथ हमारा MOU साइन हुआ था, दैट वाज अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर अस, एंड टुडे दे हैव लॉन्च्ड आवर सैटेलाइट। वो हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। COEP के डेप्यूटी डायरेक्टर चौधरी सर है हमारे साथ। सर, स्वयं बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ सैटेलाइट जब इसरो लॉन्च करती है तो पूरे देश के छात्रों के लिए वो क्या और किस तरह से इंस्पिरेशन है? ये आपने सही बताया, ये खाली COEP के लिए नहीं है, पूरे देश के तंत्र शिक्षण के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स ने, जिन्हें आजकल कहा जाता है कि कहीं हमारे क्वालिटी कम हुई क्या, ऐसा सूर निकलता है कि विविध परिसंवादों में, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने यह बता दिया है कि हम मिल के ग्लोबल चैलेंज फेस कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी ताकत इसके जरिए बता दी है। सर, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा मेक इन इंडिया की बात करते हैं। क्या आपको लगता है स्वयं उस मेक इन इंडिया को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जब हमारे स्टूडेंट मिलके सैटेलाइट बना सकते हैं, जो काफी क्लिष्ट, काफी गुंतागुंत वाली प्रक्रिया है और उपकरण मैं कहूँगा, जिसमें कमाल की एक्यूरेसी का ध्यान देना पड़ता है। जब ऐसे चैलेंज बच्चे हमारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं, तो जाहिर है कि देश आज जिस तरफ देख रहा है कि जैसे सोलर बेस्ड पंप हो, माननीय पंतप्रधान जी ने कहा है कि देश को 4.5 लाख सोलर पंप बनाने हैं। तो
ज्योति, ये बात है कि मेक इन इंडिया को परफेक्टली रिप्रेजेंट करने वाला स्वयं सैटेलाइट जो COEP के बच्चों ने बनाया है, छात्रों ने बनाया है, ना कि किसी IIT ने बनाया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भक्ति, सभी छात्र जो है जो वो इन खुश हैं बच्चों और के पुणे खाते लिए में गई है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। COEP के छात्रों ने बनाया है और आपको बता दें कड़ी मेहनत से इन 40 छात्रों ने ये उपग्रह बनाया है। और बड़ी बात यह है कि ये रेडियो कम्युनिटी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उस क्षेत्र में ये भारत को आगे लेकर जाएगा जो पुणे के छात्रों ने सैटेलाइट बनाया है।